حیات کی سلسلن پکون چھ روزن دکھن دادین غمن متون چھ روزن چھ نفسک دان چھکرت جائے جائے بچارس آدمس نچون چھ روزن دکھن دادین غمن متون چھ روزن. السلام علیکم، صبح خیر، آداب. یوتا اس دہ دہ کڑان روزو برہ کن پکان روزو تیوتا چھ اس دہ پتہ دہ نا وندس کن نزدیک پکان نزدیک گژھان. سردی مز چھ دہ پتہ دہ اس وچھان اضافہ چھ ساری محسوس کران تو یہ چھن سانہ باپت کانٛہہ نٔو کتھ. صبح ونکین کس یتھ وقتس مز الپل 10 بجن تام وُنل آسان تو شامس 5 بجہ پتہ زن کی نبر کن اتھی یوان تو درجہ حرارت سہ ونکینس منفی منزی درج یوان کرنے ریکارڈ یوان کرنے. تو ناظرین محترم یہ سوری کی اس یی ونان زِ وند ہسا ژاو وندس من ساری اس داخل گئی. چونکہ یم سات اس وچھان آٹم سیزن یوان تمہ پتہ وند کت کن یہ تاری لگان اس فکری تران. مگر یہ سوری کی وچھت ناظرین محترم پتہ یم سات اخ انسان ارد گرد نظر چھنا تراوان شین ٲسِن روٗد ٲسِن تاپھ ٲسِن کانٛہہ تہِ موسم ٲسِن. حالانکہ محکمہ موسمیات طرف آئی کینٛہہ دۄہ برونٛہہ پیش گویی کرنے کہ 9 تہٕ 10 دسمبر تام ہسا ہیٚکہِ موسم خۄشک روٗزِتھ. سردی منٛز گژھِ اضافہٕ، ٹیمپریچرس مز یی کمی. تو یہ تہِ آو وننہٕ ییٚمیُک زن أسۍ سٲری انتظار کران چھِ سُہ گوٚو شیٖن. یہ تہِ آو وننہٕ زِ شیٖنُک بُتھ تہِ ہٮ۪کو أسۍ شاید وٕچھِتھ 9 تہٕ 10 دسمبر. خیر یم سٲری معاملات چھُ اللہ تعالیٰ بہتر زانان انسانن ہٕنٛدِ کھۄتہٕ مشیٖنن ہٕنٛدِ کھۄتہٕ. تو موسم ٲسۍتن کیُتھ تہِ کانٛہہ تہِ أکِس انسان سٕنٛز ذمہٕ دٲری چھِ یِہے کہ یِتھ معاملات یم زن چھِنہ أکِس انسان زندگی اندر تمن من تمس برہ پکناونہ خاطر أکس انسانس ہر وز پیوان جدوجہد کریں. کینٛہہ سوالات ژٕ اگر نہ گھر نیر کٲم کار کر عیال کتھ کن پکہ کھیچے کیا یم تم کینٛہہ سوالات یم أکس انسانس یم أکس ذمہ دار شخصس زندہ چھ تھاوان. تو بہٕ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ صبحٲے از سٹوڈیوس کُن رخ ٲسٕس کران سفر ٲسٕس کران شیٖشہِ کِنۍ دِژٕم نظر شیٖشہِ ہٮ۪کان نہٕ بۄن ؤلِتھ کینٛہہ تِکیازِ کہِ وٕنکیٚنس چھُ ٹیمپریچر واریاہ ڈاوُن یَپٲرۍ کِنۍ تۭر چھےٚ واریاہ زیادٕ. بہٕ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ شیٖشہِ مٔنٛزۍ نظر ٲسٕس دِوان اَتہِ وٕچھِم لُکھ کینٛہہ پننٮ۪ن دُکانن کُن رۄخ کران کینٛہہ ٲسۍ مارنِنگ واک کران کینٛہہ ٲسۍ الگ الگ کامہِ کارس کُن پکان. تو ذہنس منٛز وۄتلیو یہِ خیال کہ یوٗتاہ آسان یہِ وٕنکیٚنس مےٚ نظرِ چھُنہ گژھان درٛٲڑۍ چھُ گژھان کیٛاہ یہِ چھا تیُتُے آسان؟ نہ یہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ آسان کینٛہہ یوٗتاہ أسۍ وٕنکیٚنس یہِ درٛٲڑۍ گژھان چھُ بلکہِ یہِ چھِ بس فِکر آسان أکِس انسانس یُس أکِس انسانس ژیر تام شۄنٛگنہٕ دِوان چھنہٕ کینٛہہ. یہِ چھِ فِکر آسان أکِس انسانس یُس أکِس انسانس گرِ نٮ۪بر قدم کڑنہٕ خٲطرٕ مجبوٗر چھِ کران. تو یہوے رزق ناظرین محترم یم دان یم چھ چھکرت آسان تو اللہ تعالیٰ کن ات من شکر یُتھ رزق کانٛہہ تہِ مطلب حلال طریقہ أکِس انسانس یہ رزق کماونُک یہِ کوٚرُن نصیب. تو اللہ تعالیٰ کن ییٚمہِ ساتہٕ اکھ انسان شکر چھُنہ کران یہِ انسان چھُنہٕ زندگی منٛز کٲنٛسہِ ہُنٛد محتاج آسان. خیر اللہ تعالیٰ کن یہے دعا یہے منٛگ کہ سٲنۍ یِتھی معاملات یم سپدن سہل تہٕ آسان سانہِ خٲطرٕ. آمیٖن یا رب العالمیٖن. چائے روزیو چوان پروگرام روزیو وچھان تُہۍ چھِو وچھان پنُن من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK تہٕ آز چھِ ڈسمبر رٮ۪تٕچ 7م تٲریٖخ دۄہ چھُ بٲدوارِ ہُنٛد أزکِس پروگرامس منٛز شرکت میزبٲنی اَسہِ حٲصِل. بہٕ اوسُس تُہنٛز میزبان اقرا آخوُن تہٕ پروگرامٕکۍ شریٖک میزبان چھِ اشفاق حافظی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. بالکل. اور آج آپ نے کچھ چینج تو نہیں کیا، نوٹس تو نہیں کیا ہمارے سیٹ میں کچھ بدلاؤ؟ ناظرین نے ضرور نوٹس کیا ہوگا. بالکل بالکل. اور ہمارے ناظرین کرام جو ہے بڑے اس میں یہ رہتے ہیں معاملات میں کہ نظر رہتی ہے کہ ہر ایک چیز پہ باریکی سے رہتی ہے. ظاہر سی بات ہے جو ریگولر ویورز ہیں وہ تو دیکھتے رہتے ہیں کہ آج ذرا ہم دیکھیں یتھ بیٹھائی کہ مزہ کس چینج آمت پردہ اگر بدلاؤ نا سہ چھُ تُہۍ اَسہِ نوٹس کران. صوف چھِ بدلٲمٕتۍ تہٕ ظاہر سی بات ہے ناظرین نے تو نوٹس ضرور کیا ہوگا. بالکل بالکل بالکل. السلام علیکم. صبح بخیر آداب. ناظرین کرام آپ کا پھر سے ایک اور بار میری طرف سے بھی گڈ مارننگ JNK کے اس شمارے میں استقبال. دعا یہی، امید یہی ہر صبح کی طرح کہ آپ سب لوگ خوش و خرم ہوں گے، صحت یاب ہوں گے اور اپنے زندگی کے معاملات میں رواں دواں ہوں گے. ناظرین کرام صبح صبح تمہید میں ہی آپ لوگوں کو انتظار رہتا ہے موسم کے حوالے سے کیا حال چال ہوگا اور شہراؤں کا کیا حال ہوگا.
تو محکمہ موسمیات کے اطلاع کے مطابق آج سری نگر میں مطلع صاف رہنے کے امکانات ہے۔ درجہ حرارت سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ 11.4 ڈگری سیلسیس تک رہنے کے امکانات ہے، وہی کم سے کم 0.9 ڈگری سیلسیس تک رہنے کی توقع ہے۔ اور جموں کی بات کریں تو جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.3 ڈگری سیلسیس تک جانے کی توقع ہے، وہیں کم سے کم 9.8 ڈگری سیلسیس تک رہنے کی امید جتائی گئی ہے۔ جموں میں بھی آج مطلع صاف رہے گا، موسم دونوں جگہ پہ جموں و کشمیر میں خشک اور خوشگوار رہے گا۔ ٹریفک کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ ٹریفک کنٹرول روم سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ملی ہے، وہیں بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ملی ہے۔ سری نگر سونمرگ گمری روڈ کی بات کریں تو اس پر ایک طرفہ ٹریفک کو اجازت ملی ہے۔ آج گاڑیاں چھوٹی اور مال بردار گاڑیاں دونوں گاڑیوں کو آج صرف کرگل سے سری نگر آنے کی اجازت ملی ہے۔ وہیں مغل روڈ کی بات کریں تو مغل روڈ پر آج چھوٹی اور مال بردار گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ملی ہے، چاہے وہ سری نگر سے پونچھ یا پونچھ سے شوپیاں آئے۔ جی ناظرین کرام، یہ تو تھی موسم اور ٹریفک کے حوالے سے حال چال اور بات چیت کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ بات کر رہی تھی کہ صبح صبح سردیوں میں ہر ایک معاملہ ہے نا چست و درست رہنا اور اپنے جو کام ہے اس میں رواں دواں رہنا۔ ہم بھی تو آج اپنے کام میں رواں دواں ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا آج ہمارے ناظرین کا جو تجسس ہے وہ پہلے ہی ختم کریں کہ ہمارے ساتھ کون مہمان بیٹھے ہیں۔ اچھا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو وہ سسپینس ہے وہ سسپینس برقرار نہ رکھیں، بلکہ ہم اپنے گیسٹ کو آج پہلے ہی انٹروڈیوس کریں۔ بالکل، آج ویسے ہی گیسٹ ہمارے ساتھ میں ہے جو کہ ناظرین خود ہی پھر اندازہ کریں گے کہ کیوں پہلے۔ اچھا اشفاق، آپ کو یاد ہوگا کچھ ماہ قبل ایک رپورٹ آئی تھی جو نیشنل فیملی ہیلتھ سروے ہے، ان کی ایک سروے رہی تھی 2019 سے لے کر 2021 تک، بالکل جموں کشمیر کے حوالے سے جو ایک سروے رپورٹس انہوں نے سامنے رکھی وہ بڑی حیران کن تھی۔ وہ یہ تھی کہ ملک بھر میں جو لوویسٹ فرٹیلیٹی ریٹ ہے وہ یہاں پائی گئی۔ یہ کہا گیا کہ جموں کشمیر اس میں سہر فہرست ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ 2015 سے 2021 تک 0.6% کا ڈکلائن ہمیں اس میں نظر آیا۔ تو ہم سب حیران تھے، رپورٹ تھی، بالکل ظاہر سی بات ہے۔ اس کے وجوہات کئی سارے ہو سکتے ہیں۔ بالکل ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جو ہمارا لائف سٹائل دن بدن جو چینج ہو رہا ہے، شاید ایک وجہ یہ بھی ہے۔ بالکل نیا شادی شدہ جوڑا جب اس پاک بندھن میں بنتے ہیں تو اس کے بعد ان کی ایک یہ امید ہوتی ہے کہ اولاد کا سکھ، اولاد کی خوشی انہیں بھی حاصل ہو۔ بالکل، لیکن جب اس طرح کی رپورٹ سامنے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ بچائے جب کچھ معاملات ایسے بنتے ہیں کہ اولاد کا سکھ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا، تو وہ بڑے مایوس ہوتے ہیں اور پھر نا امیدی چھا جاتی ہے۔ لیکن امید کی کرن تب نظر آتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، اتنی ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے کہ اب ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے تفصیلاً پروگرام میں بات کریں گے۔ اور ناظرین محترم، جو آج ہمارے ساتھ پروگرام میں مہمان ہیں، ایک نہیں بلکہ دو مہمانوں کو ہم نے آج کے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ ایک کو آپ بخوبی جانتے ہوں گے، جو ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے سے آپ پروگرام میں وقتاً ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ تو ضرور پہچانیں گے انہیں جب میں ان کا نام لوں گی۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ڈاکٹر وریش کمار، جو فاؤنڈر ہے اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر کے۔ آپ کا بہت بہت استقبال سر۔ تھینک یو۔ اور میرے بائیں جانب ہے ڈاکٹر ندا کاووسا، جو کہ پہلی مرتبہ پروگرام میں تشریف فرما ہے، اسی ایک مخصوص کلینک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، IVF کوآرڈینیٹر ہے اور کنسلٹنٹ ہے۔ آپ کا بھی بہت بہت استقبال۔ بہت شکریہ ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے، یہاں تشریف فرما ہونے کے لیے۔ مدعا و مقصد جو وقتاً فوقتاً آپ پروگرام میں آتے ہیں یہی ہے کہ جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو شاید نا امید ہے کہیں نہ کہیں، انہیں آگاہی دے، انہیں پوری طرح سے باخبر کرے کہ IVF ٹریٹمنٹ کیا ہے، پروسیجر کیا ہے۔ انہیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے اس پروگرام میں تفصیل اس تعلق سے بات کریں گے، لیکن
जो प्रोग्राम में खूबसूरत सी सौगात आगाज में ही अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। मेरे ख्याल से हम सब बैठ के यहाँ पर एंजॉय करेंगे। आज तो मेहमानों की खिदमत में पेश होगा। बिल्कुल, हम तो यूजुअली हम लोग कश्मीरी नगमे से ही प्रोग्राम में हम कश्मीरी नगमा अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज हमने डोगरी नगमे का इंतखाब किया है। खैर नाज़रीन मुहतरम, एक खूबसूरत सा डोगरी नगमा हम सुनेंगे प्रोग्राम के आगाज में सोनाली डोगरा की आवाज में। दिल के तस्वीर में जाना, हर सांस में तुमको पाया, इस पल की क्या हम कहें, चाहेंगे तुमको हमेशा, दिल के तस्वीर में जाना। तस्वीर तेरी मन में बसा लो, जहाँ पर भी देखूं तेरा दीद चाहूं। हाँ हाँ हार मान मेरे मुरझा रहे हैं, तेरा नाम लेकर के हम जी रहे हैं। आ जाओ ना पास मेरे, सीने से अपने लगाना, इस पल के क्या हम कहें, चाहेंगे तुमको हमेशा, दिल के तस्वीर में जाना। तुम दिल की गहराइयों में बसे हो, ख्वाबों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो। हाँ 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 दीवानी तेरी, तू मेरा दीवाना, कैसे भुला दूं ये चेहरा तुम्हारा। हमने सनम तुमको चाहा, तुम ही को खुदा मैंने माना, इस पल की क्या हम कहें, चाहेंगे तुमको हमेशा, तो दिल के तस्वीर में जाना।
گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. بڑا دیدی کی شاپنگ کے لیے باہر چلتے ہیں. باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ گولڈ ہی تو لانا ہے. گولڈ کے لیے یو آر جیولرز. یو آر جیولرز؟ ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں. یو آر جیولرز کی زبردست آفر. یو آر جیولرز پر گولڈ جیولری میلہ 5 دسمبر سے ایگزیبیشن کم بمپر سیل ہیوج ڈسکاؤنٹ. آپ بھی آج ہی پہنچ جائیں یو آر جیولرز، کادی قدر سراف قدر. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے، تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر. فار اپائنٹمنٹ کال 9814021991. ناظرین آپ کا پھر سے ایک اور بار استقبال گڈ مارننگ JNK کے اس ایک اور شمارے میں. وقفے کے اس پر آپ نے ایک خوبصورت سا نغمہ سنا. نغمہ چونکہ ہندی تھا، معذرت کھائے کہ ہم نے ڈوگرا کا، یہ نغمہ ہندی تھا اور سونالی ڈوگرا جی کی آواز میں. جی بالکل. اور ناظرین کرام پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ لوگوں کو تجسس تو تھا کہ مہمان کون ہے، لیکن وہ تو ہم نے پہلے ہی ختم کر دیا چونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ فرٹیلیٹی ریٹ کشمیر میں کم ہے یا کچھ اور وجوہات ہے، کیا مسئلے ہیں ان معاملوں میں. اور اس سے قبل انسان کا یہ رہتا تھا کہ علاج و معالجہ جو ہے وہ مہیا نہیں رہتا تھا، لیکن اب جو سائنس ہے، ٹیکنالوجی کافی آگے بڑھ گئی ہے اور جدید دور ہے، 21ویں صدی میں ہیں ہم لوگ. اور وہ معاملات جو درپیش تھے، جو تب سالو نہیں ہوا کرتے تھے، جب ان مسئلوں پہ کوئی حل نہیں، علاج نہیں ملتا تھا، لیکن وہ آج پاسبل ہے. آپ لوگوں کو پھر سے ایک بار یاد دلاتے ہیں اور پھر سے ایک اور بار میں استقبال کرتے ہوئے بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو آج مہمان ہیں ہمارے اسٹوڈیو کی زینت بڑھا رہے ہیں. میرے دائیں جانب بیٹھے ہیں ڈاکٹر وریش کمار صاحب جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں وردان IVF سینٹر، اور میرے دائیں جانب بیٹھی ہے ڈاکٹر ندا صاحبہ جی جو کہ کنسلٹنٹ ہے اور کوآرڈینیٹر ہے وردان IVF سینٹر. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا پھر سے ایک اور بار بہت بہت استقبال ہمارے اس پروگرام. تھینک یو. آپ نے ہماری دعوت پھر سے ایک اور بار قبول فرمائی، چونکہ آپ یہاں تو بار بار آتے رہتے ہیں، آج پھر سے ایک اور دفعہ ہمارے پروگرام کی زینت بڑھائی. اور ایک بات یہ بھی کہ ہم کبھی پروگرام میں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ آپ پروگرام کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ پروگرام کا آپ حصہ روز ہی ہے. روز ہمارے سامنے ہی ہوتے ہیں. سامنے ہی ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر وریش صاحب، چونکہ آپ پروگرام میں وقتاً فوقتاً اس لیے آتے ہیں تاکہ آگاہی ہم اس تعلق سے قائم کریں، عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ جاننا کتنا ضروری ہے لوگوں کو کہ اس کا بھی علاج ہے، انہیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح کی امید ہم پروگرام کے ذریعے سے قائم کرتے ہیں، ان تک پہنچاتے ہیں. خیر، آج چونکہ پچھلی بار ہم نے جو ٹاپکس ڈسکس کیے تھے، ممکن ہے کہ آج ہم اس پہ زیادہ اسٹریس نہ دیں، کچھ اور ڈسکس کریں اسی ریلیٹڈ. وہ کہتے ہیں نا کہ ہائی لائٹ دیں ہمیں اس تعلق سے کہ کیا ہم آج جو زیادہ ہم ڈسکس کریں گے پروگرام جس پہ ہمارا اسٹریس رہے گا وہ کیا ہوگا. دیکھیے، سب سے پہلے تو جب ہم بات کرتے ہیں انفرٹیلیٹی کی تو ہمیں ایک چیز بہت دھیان سے سمجھنی چاہیے کہ انفرٹیلیٹی کا الٹیمیٹ سولوشن IVF نہیں ہے. بہت سارے ایسے پروسیجر ہیں، پیشنٹس کو بہت سارے ایسے پروسیجرز اور ایسی ٹیکنیکس کے ساتھ ہم لوگ ڈائگنوز کر سکتے ہیں، ہم ایک ٹریٹمنٹ کا پروٹوکول ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. پیشنٹ کو یہ دماغ میں کہ نہیں انفرٹیلیٹی ہے تو صرف IVF ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے. IVF سے پہلے بہت ایسے پروسیجرز ہیں، بہت ایسے پیرامیٹرز ہیں جن کو ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں. پہلے اس کے اکارڈنگلی ان کا ٹریٹمنٹ کا جو پروٹوکول ہے اس کو ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر سپوز پریگنینسی نہیں ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی IVF جو ہے ایک بہت ایڈوانس پروسیجر ہے، ایڈوانس ٹیکنیک ہے جس میں پریگنینسی ہونے کے چانسز ڈیفینیٹلی بہت اچھے ہیں. کیونکہ پیشنٹس جب ہمارے تک آتے ہیں IVF کلینک کا نام سن کے آتے ہیں تو دماغ میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ پہلے کرا لیا ہے، میڈیسنز بھی کھا لی ہیں، ٹیوبس کا ایویلویشن بھی ہو گیا، کوئی سرجری لیپروسکوپی بھی ہو گئی، میڈیسن کھانے کے بعد بھی ان کو پرابلم آئی
प्रेगनेंसी हुई और प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर सके, जल्दी मिसकैरेज हो गया, मेल्स में प्रॉब्लम है, उनके लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें जो है जैसे जैसे उनकी इवैल्यूएशन होती है हमें ये समझ लेना चाहिए कि उसको विदाउट आईवीएफ भी सॉल्व किया जा सकता है, और अगर जरूरत पड़े तो आईवीएफ भी एक प्रोसीजर है बिल्कुल, जिसके कारण हम लोग प्रेगनेंसी देने में उनको कामयाब हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आज हमारा मुद्दा और मकसद यही रहेगा कि जो इनफर्टिलिटी की बात की उसी पर हम लोग ज़्यादातर बात करेंगे, फोकस करेंगे। लेकिन हमारे नाजरीन के लिए पहले ये तो हमें नाजरीन को पता होना चाहिए ना कि आईवीएफ क्या है, ये फर्टिलिटी की बात क्यों हो रही है, क्या वजूहात है, किस तरह से ये इनफर्टिलिटी होती है, पहले इनके बेसिक्स पे जाएंगे, वो ज़रा आप हल्का फुल्का सा बताएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर एक जैसे मैरिड कपल है, 1 साल तक अगर प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली उनको एक कंसल्टेंट के पास चले जाना चाहिए, ये जानने के लिए कि कौन से ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसके कारण उनको एक प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही। सो सबसे पहले देखा जाए तो फीमेल्स में हम नॉर्मली देखते हैं कि उनके पीरियड्स रेगुलर हैं कि नहीं है, क्या उनके हार्मोन्स रेगुलर हैं कि नहीं है, उनके हार्मोन्स कहीं पे डीरेंज तो नहीं है जिसके कारण उनको ये प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, क्या उनको जो एग्स हैं टाइम पे बनते हैं, ओवुलेशन टाइम पे होती है कि नहीं होती है, ये सारी चीजें जो है वो एक इवैल्यूएशन है। उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड से उनके यूट्रस को देख लेना बहुत जरूरी है, देखने के लिए कि यूट्रस का साइज अच्छा है, नॉर्मल साइज है, क्या यूट्रस में किसी तरीके का कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, किसी तरीके की कोई सिस्ट तो नहीं है, किसी तरीके का कोई यूट्रस के अंदर पॉलिप तो नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस एक डिसीज है जो नॉर्मली फीमेल्स में देखा जाता है, 15 to 20% फीमेल में वो एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, उसको देखा जाता है। तो एक फीमेल की कंप्लीट इवैल्यूएशन कर लेनी बहुत जरूरी है, जिसमें हार्मोन्स, यूट्रस, उनकी ट्यूब्स, ये सारी चीजें अगर नॉर्मल है तो फिर सेकंड जो पार्ट है दैट इज द मेल पार्टनर। जी जी, फिर मेल पार्टनर में ये देखना कि उनके स्पर्म काउंट नॉर्मल है, क्या स्पर्म काउंट नॉर्मल होने के बाद उनके ऐसे स्पर्म्स हैं जिनसे नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है कि नहीं हो सकती, जी जी, उनकी मूवमेंट में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, स्पर्म एबनॉर्मल तो नहीं है, जी स्पर्म का वॉल्यूम कम तो नहीं है। जी बिल्कुल, 20% मेल्स ऐसे हैं जिनमें स्पर्म है ही नहीं, जो कि हम इवैल्यूएट करते हैं कि नील स्पर्म के साथ है, बट ऐसा नहीं है कि जिनमें नील स्पर्म है उनके अंदर स्पर्म जनरेट नहीं हो रहे, स्पर्म जनरेट हो रहे हैं या तो उनका वॉल्यूम कम है, नंबर कम है, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे। सेकंड हो सकता है कि उनके जहां स्पर्म बन रहे हैं वहां से बाहर आने में कोई ब्लॉकेज, बिल्कुल, सो जिसको हम वैस ब्लॉकेज बोलते हैं या एपिडिडमल ब्लॉकेज बोलते हैं, ऐसे जो मेल्स हैं उनमें एक डायग्नोज होना जरूरी है कि क्या उनके हार्मोन्स के कारण ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर वो हार्मोन के कारण प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली मेडिकेशन है उसके लिए। सपोज ब्लॉकेज है तो उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है, स्पर्म अंदर से एस्पिरेट कर सकते हैं, एस्पिरेट करने के बाद फीमेल के एग्स के साथ उसको फर्टिलाइज करके एक लेडी के अंदर जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बेटर हो जाते हैं, और वही एक ऑप्शन रह जाता है ऐसे मेल्स में। बिल्कुल, कुछ मेल्स ऐसे हैं जिनमें स्पर्म अंदर जनरेट नहीं हो रहे हैं, हार्मोन्स नॉर्मल हैं, ब्लॉकेज नहीं है, उनको भी मेडिसिन से नॉर्मल किया जा सकता है, बट 90% मेल्स ऐसे हैं जिनमें नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, बट उनको अपने स्पर्म के साथ बच्चा जरूर पैदा किया जा सकता है, और फिर आईवीएफ की टेक्निक जो है उनके लिए काम करती है। आईवीएफ की क्या मुख्तलिफ और प्रोसीजर्स है, इस ताल्लुक से हम बात जरूर करेंगे, चूंकि हमारे साथ आज डॉक्टर निदा काऊस साहिबा भी हैं जो पहली दफा प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है। जाहिर सी बात है पहली दफा प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है तो जो नाज़रीन है वो भी जानना चाहते होंगे कि निदा काऊसा के बारे में हम मजीद जानें। बताइएगा कि कहाँ आप पैदा हुई और तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा, इस फील्ड की और किस तरह से आई। सबसे पहले अपने देखने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बॉर्न हूँ कश्मीर में, श्रीनगर में पैदा हुई हूँ, मेरी स्कूलिंग श्रीनगर में हुई है। देन आई कंटिन्यूड विद माय मेडिकल स्टडीज आउटसाइड इंडिया, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माय डिग्री एवरीथिंग विद द रजिस्ट्रेशन, देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन श्रीनगर ओनली, ओके, विद वेरियस हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट सेटअप्स एंड प्राइवेट सेटअप्स एज वेल। ओके, तो ऑफ लेट
I joined Vardhan. I came across this thing. I met काफ़ी सारा पता था. Infertility, since it's a big issue nowadays, तो थोड़ा interest भी है. And since I love to work with patients, I have been working with gynae. I have been dealing with you can say gynecological patients भी काफ़ी देखे, या gynae में काम किया, OBS में देखा थोड़ा, being a resident doctor only. तो then Vardhan के बारे में सुना, देखा, then somehow I came across and I joined Vardhan team. So धीरे धीरे interest भी बढ़ गया. बिल्कुल. तो and since it's a big topic, it's a vast topic in fact. जितनी भी इस पे बात करें उतनी कम है. And it is such a topic कि जो एक बारी में बात करके cover नहीं होगा. It has multifactorial reasons. तो interest आ गया, and yes, I like it. I work with, I actually love to deal with patients. When you deal with patients, you become very close to them. And when you become very close to them, then you feel them actually. And when you feel them, then you are willing to do anything for them. Doctor ने in their benefit. चूँकि आप कोऑर्डिनेटर हैं, कंसल्टेंट हैं वर्धान इस मखसूस क्लिनिक में, किस तरह का तजुर्बा रहा आपका? It's a really good experience, and I can say like life is about growing. So every day I'm growing with new things, and everything, every time it seems like something new is there to learn. And learning has not stopped yet. And it will continue. So it's a good experience. Alhamdulillah till now. माशाल्लाह माशाल्लाह. डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे, अब जब आपने तो बहुत ही उम्दा बात ही कही कि पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप किस तरह का होना चाहिए, इसको आपने हल्का सा डिफाइन किया, आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में कहा. बात करते हैं IVF सेंटर की, चूँकि मैं फिर से इसी बात पे आना चाहूँगा कि जो हमने पहले जिक्र किया कि कश्मीर में जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम है, और डॉक्टर साहब ने जो पहले ही कहा कि मायूसी की कोई ज़रूरत नहीं है. ऐसे मामलों में हम क्या करते हैं, हम ज़रा सा इस मामले को सामने रखने में, इस मामले पे बात करने पे हिचकिचाते हैं. क्यों, क्या वो जो हाथ है, और फिर हमें ये देखने को मिल रहा है. Actually, Ashfaq साहब आप देख लीजिए, since we are in such a society, I will not talk about Kashmir only. अगर वो broadly करकात, broadly बिल्कुल, चाहे वो कोई भी society हो, इधर it's Kashmiri society या outside Kashmir, it's such a stigma हम लोगों के बीच में कि we take it like very, it's a keen issue. एक पेचीदा सिचुएशन होती है फॉर अ कपल, बट हम क्या करते हैं कि हम ये एक ऐसा मसला होता है, बोलने से भी हिचकिचाते हैं, छुपा के रखते हैं, तो और परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं. तो सबसे पहली बात व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि वी शुड बी क्लियर कि प्रॉब्लम कहाँ है और किस में है. जब एक कपल में ये हस्बैंड वाइफ हैं, इनको ये समझना है कि देयर शुड बी नो हेजिटेंस बिटवीन बोथ द पार्टनर्स. हाँ, एंड दे शुड बी लाइक इन एन एक्सेप्टेंस मोड कि इफ यू हैव प्रॉब्लम, आई एम देयर टू डील विद यू, एंड आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट एंड टेक इट. एंड फॉर एग्जाम्पल, इफ फीमेल हैज, द मेल हैज टू सपोर्ट, एंड इफ द मेल हैज, फीमेल हैज टू सपोर्ट. एंड दिस इज लाइफ, द लाइफ साइकिल, लाइक गाड़ियों के दो पहियों के एक साथ चलना लाजिम. जैसे हम जिंदगी चलाते हैं, साइकिल के दो टायर्स हैं, एक आगे एक पीछे. सिमिलरली ये तो एक जिंदगी की बात है ना. एंड दीज प्रॉब्लम्स अकर इन द बिगिनिंग ऑफ द मैरिटल लाइफ ओनली. सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पेशेंट. आई वुड लाइक टू से दे हैव, दिस कपल हैज टू अंडरस्टैंड वेयर लाइज द प्रॉब्लम. एब्सोल्युटली. एंड प्रॉपर एड्रेसल इज मस्ट. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. आप कैसे एड्रेस करेंगे, आपको डॉक्टर के साथ, हमारे सोसाइटी में यूजुअली क्या होता है, दीज पेशेंट्स डोंट कम अप. बिल्कुल. They don't come up. Either they portray something and they only come up with such issues when family में कोई उनको poke करेगा. बिल्कुल. That's like it's very common in our culture. I can say कि what is the good news? ये क्या सच दलील? Yeah. And it has आजकल it has become really ना वो haunt होता है couple को. हमें ये कोई पूछना नहीं चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Because of any issues, they don't want to come up. बिल्कुल आपने एक्सेप्टेंस मोड नहीं है पेशेंट्स में. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया. यहाँ पे मैं तो ये भी कहना चाहूंगा यहाँ पे कि वहाँ पे समझना चाहिए कि ये मामला जो है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ
सिर्फ मेरे साथ दरपेश नहीं है। इस पर तो बात जारी रहेगी, लेकिन हम पे एक जिम्मेदारी बनती है, एक छोटा सा वक्फा ले लेंगे। नाज़रीन किराम, एक छोटे से वक्फे के लिए रुकते हैं, वक्फे के उस पार ये गुफ्तगू जारी रहेगी और अखबारात की सुर्खियां भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। गटि मंज जन यी जुनगाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। बड़ा दीदी की शॉपिंग के लिए बाहर चलते हैं। बाहर जाने की क्या जरूरत है, गोल्ड ही तो लाना है। गोल्ड के लिए यूआर ज्वेलर्स। यूआर ज्वेलर्स? हाँ ठीक है चलते हैं। यूआर ज्वेलर्स की जबरदस्त ऑफर। यूआर ज्वेलर्स पर गोल्ड ज्वेलरी मेला 5 दिसंबर से एग्जीबिशन कम बम्पर सेल, ह्यूज डिस्काउंट। आप भी आज ही पहुंच जाएं यूआर ज्वेलर्स, खादी कदर, सराफ कदर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर, मगर मलबाग, श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। इस्तकबाल आपका फिर से एक और बार गुड मॉर्निंग जे&के के शुमारे नाज़रीन किराम। नाज़रीन मोहतरम, वक्त हो चला है आप तक पहुंचाए अखबारात की सुर्खियां और शुरुआत करते हैं एक मकामी रोजनामे से। मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा है, इसकी शह सुर्खी कुछ इस तरह से है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जम्मू में माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम में शिरकत, कहा तरक्याती इकदाम के लिए लोगों की शिरकत एक फैसला कुन अंसर है क्योंकि हर शहर के चैलेंजेस और मौके मुख्तलिफ होते हैं। जी मकामी उर्दू रोजनामा मेरे पास भी और इस अखबार से भी ये एक अहम सुर्खी आप तक पहुंचाएंगे। सदर ने जस्टिस ताशिर अबस्तान को जम्मू व कश्मीर लद्दाख का कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर किया। 8 दिसंबर को चार्ज संभाल रहे हैं। जी मेरे हाथ में एक और अंग्रेजी रोजनामा है, इसकी खबर कुछ इस तरह से है। J&K's एनुअल बजट फॉर 2023 and 24 बीइंग प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट। जी नाज़रीन मोहतरम, मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास और इस अखबार से बड़ी ही दिलदोज खबर इसमें शाया हुई है। वुमेन डाइज 8 इंजर्ड इन रोड एक्सीडेंट इन राजौरी। जी मेरे हाथ में एक आखिरी अंग्रेजी रोजनामा है, इसकी खबर कुछ इस तरह से है। HC यानी हाई कोर्ट कॉल्स फॉर रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन। जी बहुत ही अच्छी खबर है। आखिर रोजनामा मेरे पास भी और इस अखबार से भी एक अच्छी खबर शाया हुई है। अशफाक, कश्मीरी ड्राइवर की ईमानदारी, 10 लाख के जेवरात सयाह को लौटा दिए। बड़ी खुशाइन बात। जी अशफाक। जी बहुत खूबसूरत खबर आपने सुनाई और हम तो इसी के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप तक पहुंचाएंगे एक खूबसूरत सा सेगमेंट गुड मॉर्निंग एजुकेशन। डॉक्टर तारिक मरगूब साहब बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। आइए देखते हैं ये खूबसूरत सा सेगमेंट गुड मॉर्निंग एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज का सेगमेंट हम उस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आप कहते हैं कि कितनी आपके पास नॉलेज है, कितना जानते हैं, क्या जानते हैं, उससे आपको सिर्फ 10-20% सक्सेस मिलती है। बाकी चीजें भी जो लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 70-80% है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं अगर आप पानी में डूब रहे हैं, अब कहीं ना कहीं हमें तैरना नहीं आता तो हम उन भावनाओं में या उन इमोशंस की वजह से डूब सकते हैं जैसे पानी में। मगर एक गुब्बारा अगर लगाए हम, वो जो लगाएं जैकेट, वो जैकेट हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है कि कैसे इस्तेमाल करें। कभी कभी इसकी वजह से कि हम भावनाओं में बह जाते हैं, ऐसे इमोशन में आ जाते हैं और हमें कंट्रोल नहीं रहता। तो हमारे रिलेशंस हों,
चाहे एजुकेशन में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे वर्कशॉप में जहां पे हम जाते हैं, जहां काम करते हैं, वर्क प्लेस पे हो या घर में हो, रिश्ते बिगड़ जाएंगे सारे। इसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप की जा सकती है बच्चों में, बड़ों में, उसके लिए आप देख लीजिएगा। आप देखेंगे व्हाट इज इमोशनल, द टर्म वाज, ये एक्चुअली बनाई थी पीटर और सरोल ने 1990 में। 1996 में एक किताब आ गई, डैन गोलमैन ने बताई इमोशनल इंटेलिजेंस क्या चीज है, व्हाई इट मैटर्स मोस्ट, आईक्यू से ज्यादा। वो कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग our own feelings and those of others for motivating ourselves and for managing emotions effectively in ourselves and others. बाकियों में भी आप तो अपने में इमोशंस को देखना और परखना, इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। और उसके साथ उसके हिसाब से कहना, वो कहते हैं कंपिटेंस जो है इमोशनल इंटेलिजेंस, लर्निंग कैपेसिटी, रिकॉग्नाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग द इमोशंस ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स, एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स, डेवलपिंग एंड maintaining social relations, coping with the challenges, using emotional information in an effective and meaningful ways. ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन इसके एसेंशियल्स आप देखेंगे, ये देखिए हम कभी कभी क्या करते हैं, हम अपने मस्त, कोई अपने माँ बाप लगे रहते हैं, बच्चे लड़े, चुप करो, इससे उनका हम क्या कराते हैं, दबा देते हैं उनके इमोशंस को। बेटर था इस तरीके से हम अगर बच्चों को अपने साथ रखें। मैं आपको बताता हूं, अगर इस तरीके से तो फैमिली में रिलेशनशिप बहुत अच्छी डेवलप हो जाएंगी, बच्चों में, खानदान में, घर में प्यार बटेगा। सो कुछ टाइम अपने बच्चों के लिए भी दिखाइए, उनको क्या कर रहे हो बेटा, क्या खेल रहे हो। अगर इस तरीके से हम डेवलप करेंगे, मैं बताता हूं इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जो चाहिए दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मींस, अवेयरनेस किसको कहते हैं, अवेयरनेस मतलब हो गया मैं यहां पे हूं, साइड में क्या हो रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, हम कहां चल रहे हैं, हमारी मंजिल कहां है, हमारी डायरेक्शन क्या है, ये हो गई अवेयरनेस। लेकिन इसी का एक पार्ट है सेल्फ अवेयरनेस, मैं कहां हूं, मेरी आदत क्या है, मेरी इमोशंस कैसी हैं, इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। मेरे बिलीफ्स क्या हैं, तो अपने बारे में जानने को कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सो अगर हमें इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करनी है तो वी शुड नो अबाउट आवरसेल्व्स, हु वी आर, हमारे में क्या क्या चीज ट्रेट्स है। दूसरी जो चीज है उसको कहते हैं स्टॉप प्रैक्टिस। स्टॉप प्रैक्टिस का मतलब नहीं है कि प्रैक्टिस बंद करो, नहीं, स्टॉप की प्रैक्टिस करो, STOP। STOP मतलब स्टॉप की प्रैक्टिस कीजिए। S मीन्स सी योर इमोशंस, T मीन्स टेक डीप ब्रीथ, और O मीन्स ऑब्जर्व योर इमोशंस, अपनी फिजिकल बॉडी पे उसका असर क्या हो रहा है, आपको क्या टेम्पटेशन हो रही है। और P मीन्स प्रैक्टिस पीस इन प्रेजेंट। अगर ये किया आपने, अगर बच्चों ने ये किया, और उसके बाद एम्पैथी, ये चीजें आपने देखी, क्योंकि आपने जब ब्रीथ किया तो आपको टाइम मिलेगा, और टाइम गैप से क्या होगा, आपको आपकी इमोशंस को रिएक्ट के बदले वो रेस्पॉन्स बन जाएंगी। बच्चे विल एबल टू डू अभी, और एम्पैथी हो जाएगी तो दूसरे के जज्बात को भी आप समझेंगे वैसे ही जैसे, देन आपकी जो सोशल बॉन्डिंग्स होगी, आपकी जो रिलेशनशिप होगी, आपके जो काम में जहां पे भी आप जाएंगे, आप यू विल बी बेटर इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। क्योंकि आपने जो ये STOP मैंने जो दिखाया, ये क्लास में कराया जाता है थ्रू वर्कशॉप्स में, बच्चे एंजॉय करते हैं इसको, और उसको जब उनको दे देते हैं बेटा जरा ये कर लीजिए, क्योंकि स्टॉप में गैप मिल जाता है, तो जब भी टाइम गैप मिलेगा आपको तो आप ऑब्जर्व कर पाते हैं चीजों को, और आपका जो डिसीजन होगा दैट विल नॉट बी रिएक्शन, वो आपका रेस्पॉन्स होगा। तो ये बच्चों को सिखाया जा सकता है। आप आज मुझे दे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। वेलकम बैक। 3-4 मिनट का वक्त ही लेते हैं डॉक्टर तारिक मरगूब साहब, लेकिन कितनी मुफीद और कारामद बातें पहुंचाते हैं ना हम सब के लिए, हम सब तक। और उम्मीद यही कि हम सब इस पर अमल करेंगे और इसे अपनी ज़िंदगी में अमल लाने की कोशिश करेंगे, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। खैर, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज के प्रोग्राम में हम IVF प्रोसीजर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, और हमारे साथ जो 2 मेहमान तशरीफ फरमा हैं जिनको हमने मदऊ किया है अपने स्टूडियोज़। मेरे दाएं जानिब डॉक्टर वरीश कुमार जो फाउंडर है और मैनेजिंग डायरेक्टर है वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर के, और बाएं जानिब है डॉक्टर निदा काऊसा जो IVF कोऑर्डिनेटर है और कंसल्टेंट है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर वरीश साहब से। मेरे ज़हन में ये सवाल है, चूंकि हमने इस ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि जब तमाम प्रोसीजर्स फेल होते हुए नजर आते हैं एक शादीशुदा जोड़े के लिए, उसके बाद जब हम आपकी ओर रुख करते हैं, IVF सेंटर की ओर रुख करते हैं, कई सारे खदशात होते हैं, कई सारे सवालात होते हैं पेशेंट्स के। किस तरह के सवालात वो आपसे करते हैं, जरा वो गिनवाएं। देखिए, सबसे पहले तो जो पेशेंट्स बहुत जगह से अपना ट्रीटमेंट करा चुके होते हैं, बहुत सारी मेडिसिन ले चुके हैं जी, ओवुलेशन के ड्रग्स ले चुके हैं, ट्यूब्स का टेस्ट करा चुके हैं,
इतनी सारी दवाइयां खाने के बाद भी उनको वही प्रॉब्लम जो है वैसे ही परसिस्ट करती है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्या वो प्रेग्नेंट हो पाएंगे कि नहीं. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन रहता है पहला क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन आता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा. अच्छा. थर्ड क्वेश्चन आता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है. बिल्कुल. कितना, ऐसा तो नहीं कि हमारे बजट से बाहर चला जाए या हम इसको अफोर्ड ना कर सकें, और अगर अफोर्ड करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो क्या हम फेल तो नहीं हो जाएंगे. सो ऐसे जो क्वेश्चंस, लीडिंग क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के साथ जब एक कपल आता है तो सबसे पहले हमारा जो फर्ज बनता है वो ये कि उनको राइट डायरेक्शन दें. बिल्कुल. कि उनको क्या करना चाहिए. अच्छा. कब तक उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, और कितने % चांसेस हैं किसी भी आईवीएफ पेशेंट्स को, किसी भी कपल को जिसका आईवीएफ हो रहा है, कि उसमें प्रेगनेंसी रेट क्या है. यानी सही काउंसलिंग उनकी होती है. यस, बिल्कुल. फर्स्ट सबसे पहले कि उनको अवेयर करना कि आईवीएफ है क्या. नंबर 2 कि आईवीएफ में वेदर वो फिट है कि नहीं, क्या वो फिजिकली फिट है, क्या वो साइकोलॉजिकली फिट है, क्या वो फाइनेंशियली फिट है, क्या वो यूट्रस वाइज फिट है, क्या वो स्पर्म वाइज फिट है. सो देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स जिससे कि एक पेशेंट को आईवीएफ पे प्लान किया जा सकता है या प्रोग्राम किया जा सकता है. बिल्कुल. अब बात आती है कॉस्ट की, बिकॉज हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, हर एक के पास इतना पैसा नहीं है. बिल्कुल. तो कोशिश ये रहती है कि उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है उसको मद्देनजर रखते हुए उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए. कम से कम टाइम लिया जाए. ये नहीं है कि आईवीएफ करने से पहले कुछ पहले ये ट्राई करके देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर ये कर लेंगे. जो पेशेंट हमारे तक पहुंचते हैं वो ऑलमोस्ट हर चीज पहले ट्राई कर चुके होते हैं, वेरियस डॉक्टर्स से भी. आज एक कंसल्टेंट के पास गए, 2-3 महीने में फर्क नहीं पड़ा, दे गो टू द नेक्स्ट वन. दूसरे कंसल्टेंट के पास गए, नहीं फर्क पड़ा, तो वो जिसको कहते हैं कि 3-4-5 डॉक्टर से डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के साथ अपना ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं. और जब किसी से भी उनको फर्क नहीं पड़ता, देन वो एक आईवीएफ कंसल्टेंट या एक इनफर्टिलिटी सेंटर में डेफिनेटली आते हैं. बिल्कुल. उसके बाद जाके कहीं पे उनका एक प्रोग्राम उनको दिया जाता है. डे 1 पे उनकी कॉस्ट क्या होगी उसके बारे में समझाया जाता है. बिल्कुल. कल एक पेशेंट आया है वरदान से, ऑलरेडी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है. चलते हुए ट्रीटमेंट में वो 3 इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट को और भी कंसल्ट कर रहा है. वहां पे आता है कंफ्यूजन. हाँ, बिल्कुल. जब आप एक इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास चले गए और आप उनसे इत्तेफाक रख रहे हैं हर चीज के बारे में, तो फिर उसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल. आपने इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, आप एक आईवीएफ के लिए पेशेंट हैं, तो आप उस क्लिनिक को फॉलो करें जिससे आपको सेटिस्फैक्शन हो कि मेरे को यहाँ से सफलता मिलेगी, मुझे यहाँ से प्रेगनेंसी होने के चांसेस किसी और क्लिनिक से बेटर है. एंड वो ही एक कॉन्फिडेंस है जो डॉक्टर को भी पेशेंट पे होता है और पेशेंट को डॉक्टर पे होता है. बिल्कुल. सो कॉन्फिडेंस होना एक दूसरे पे बहुत जरूरी है, बिकॉज इतनी हाई कॉस्ट, इतने सारे प्रोसीजर को अगर हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली पेशेंट का डॉक्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. और उससे उनकी जो सक्सेस है बिल्कुल वो बेटर हो जाती है. बिल्कुल. इस बात में जहन में कई सारे सवालात होंगे. नाज़रीन ने भी इस वक्त चूंकि यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए से वो हमें देख रहे हैं और उनके भी सवालात कुछ आए हैं, वो भी हम जरूर लेंगे. लेकिन उससे कब चूंकि आपने कॉन्फिडेंस की बात की तो मेरे जहन में ये सवाल उभर के सामने आया, वो कि अक्सर ये ट्रस्ट इश्यू रहता है. डेफिनेटली. वो ट्रस्ट सबसे पहले गेन करना पड़ता है. Definitely. इस तरह का कि ये जो बेबी है ये इस एक पर्टिकुलर मेल और इस एक पर्टिकुलर फीमेल से ही आया है. ये ट्रस्ट इश्यूज किस तरह से आप दूर करते हैं और गेन कैसे करते हैं? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर हम किसी भी कपल को ट्रीट कर रहे हैं, उनमें अगर सपोज मेल में प्रॉब्लम है या फीमेल में प्रॉब्लम है, एक चीज उनको बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर हम लोगों ने उन्हें ये बोला कि ये फीमेल के एग्स और मेल के स्पर्म से बच्चा है, तो डेफिनेटली उसका डीएनए जो है उन दोनों पे होगा. दैट इज वेरी क्लियर. किसी भी रिलीजन में, किसी भी सोसाइटी में हर जगह पे डेफिशिएंसी मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है. बिल्कुल. हम लोगों को ये समझना है कि अगर किसी में कोई कमी है तो उसका इलाज है. बिल्कुल. अगर किसी में कमी है तो उसको ट्रीट किया जा सकता है. बिल्कुल. अगर नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल. डिफरेंट प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं. अल्टीमेटली अगर सारे प्रोसीजर्स फेल हो जाते हैं पेशेंट्स के ऊपर
IVF ایک ایسا سکسیسفل ٹریٹمنٹ پروسیجر ہے جس سے آلموسٹ 70 to 80% پیشنٹس فرسٹ اٹمپٹ میں پریگنینسی اچیو کر جاتے ہیں. ماشاءاللہ. اب کوشچن آتا ہے کہ ان پیشنٹس میں کیا کمی تھی جس کے کارن ان کو IVF پہ جانا پڑا. اس کے لیے ایک اویئرنیس ہونی بہت ضروری ہے. بالکل. آپ جب تک پیشنٹ کو اویئر نہیں کر دو گے, آپ جب تک پیشنٹ کو ان کے بارے میں نہیں سمجھا دو گے, پیشنٹ کو ہمیشہ ایک کنفیوژن رہے گا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بالکل بالکل. سو کانفیڈینس لیول پیشنٹ کا جو ٹرسٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی بلڈ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. ان کو اپنے کنسلٹنٹ پہ, اپنے ڈاکٹر پہ وشواس ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. کہ جو ہو رہا ہے وہ میرے فائدے کے لیے ہو رہا ہے. بالکل. ڈاکٹر تو صرف ایک ٹریٹمنٹ دینے کا ذریعہ ہے. بالکل بالکل سو بالکل. دس از دا مین امپورٹنٹ تھنگ وچ وی نارملی ہم پیشنٹ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جی جی. اور پیشنٹ اس سے کمفرٹیبل رہتا ہے. صحیح بات ہے. بات چیت کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رکھیں گے. اور ایک سوال آیا ہے, وہ ویورز کی طرف سے سوال آیا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. لیکن ناظرین محترم فی رکتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے لیے. سردیوں میں آپ کا گرم ساتھی کمپینین مارک آف ایکسیلنس لائے ہیں کشمیر کے سرد موسم کے لیے خصوصی گرم اور دلکش کمپینین تھرملز فار لیڈیز, جینٹس اینڈ کڈس, کمپینین ٹریک سوٹس, کمپینین جیکٹس, کمپینین پیور وولن سویٹرز اور بھی کمپینین کی مختلف اقسام وادی کشمیر کے ہر مشہور و معروف سٹورز پر دستیاب ہے. کمپینین مارک آف ایکسیلنس. آپ کو پھر سے ایک اور بار استقبال گڈ مارننگ جین کے ایک اور شمارے میں. اور آج بات چیت ہو رہی ہے. ہم نے 2 مہمانوں کو اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہوا ہے. میرے دائیں جانب بیٹھے ہیں مگرمل باغ IVF سینٹر کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور فاؤنڈر ڈاکٹر وریش کمار صاحب, اور میری دائیں جانب بیٹھی ہے اسی سینٹر کی کوآرڈینیٹر اور کنسلٹنٹ ڈاکٹر ندا کاؤس. آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جو وہ بالکل جاری ہے. آتے ہیں آپ کے پاس ہی ڈاکٹر ندا صاحبہ, چونکہ ہم بات کر رہے تھے ایکسیپٹنس کی, اور اس کے بعد جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پروسیجرز وغیرہ جو آپ لوگوں کا IVF کلینک ہے, اگر ہم یہی مگرمل باغ کی جو آپ لوگوں کا اپنا کلینک ہے اس کی بات کریں, ٹرسٹ کی جو بات ہو رہی تھی اور سکسیس ریٹ کی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی, کس طرح کا ٹرسٹ بلڈ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ میں نے پہلے بھی تو یہ عرض کیا تھا کہ ہم لوگ ہچکچاتے ہیں, ڈر محسوس کرتے ہیں کہ وہاں جائیں نہیں جائیں, یہ پروسیجر کریں نہیں کریں. کس طرح کے تعلقات پیشنٹ سے بنائے جاتے ہیں اور کس طرح ان کی پرائیویسی کا خیال رکھا جاتا ہے؟ بالکل, کافی اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے, ہمارے پاس پیشنٹ آئے گا اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ کسی بھی سینٹر میں اگر پیشنٹ جاتا ہے تو ایک ڈاکٹر کا خصوصاً ایک یہ زیادہ اس پہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایمفیسس دیتا ہے یا اس پہ سٹریس دیتا ہے کہ میرے کو جو بھی پیشنٹ بولے گا وہ میں ایک پہلے سمجھوں گا, اس کے بعد جتنا میں سمجھتا ہوں اتنا ہی میں ڈیلیور کر پاؤں, مطلب میں اتنا ہی اس پیشنٹ کو دے دوں اور سمجھاؤں. بحقیق تیوتاہ میں سمجھے اور تیوتاہ ہیکو میں سمجھے کہ ام سن ذہنس مز یم تہ کینٛہہ سوالات آسان, یم تہ کینٛہہ خدشات آسان, تم شک آسان, تم ہیکہ بہ پننے ذریعے پننے بیسٹ یوتاہ بہ ہیکہ دتھ بہ ہیکہ تم تمس کلیئر کرتھ, جو کہ ہمارے سینٹر میں ہوتا ہے. ہم پیشنٹس کے ساتھ وقتاً فوقتاً ہم ان کو فالو اپ کے لیے بلاتے ہیں. انفیکٹ ہمارے پاس ان کو جتنا بھی پہلے جیسے ہم پیشنٹ کو ایویلویٹ کریں گے, ہم اس کو ایویلویٹ سنس سٹارٹنگ کرتے ہیں, اس کے جو بھی انویسٹیگیشن کرنے ہیں وقتاً فوقتاً جو انویسٹیگیشن میں اس کو اگر ڈی رینجڈ ہوں گے تو ہم سمجھائیں گے کہ جی آپ کا یہ لیول تھوڑا زیادہ ہے یا جو بھی ہے, کن کن چیزوں پہ ہمیں کام کرنا ہے, اور تاکہ اس کے ذہن میں کوئی بھی کنفیوژن رہنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے. ظاہراً جب گنجائش ہے ہی نہیں کنفیوژن کی تو جو وہ بانڈ ہے, بانڈ آف ٹرسٹ ہے, وہ زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور آپ نے سوال کیا تھا کانفیڈینشیلٹی اور پرائیویسی کی, تو دیٹس اے مارک آف ریسپیکٹ جو ہم پیشنٹ کے لیے دیتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم پیشنٹ کی قدر نہیں کریں گے تو ہمارا کام ویسے ہی چلتا ہے. تو اس کا تو خاص خیال رکھا جاتا ہے ہمارے سینٹر میں, اور اس کے حوالے سے کوئی بھی پیشنٹ بے فکر رہے اور مطمئن رہے, یہ ہماری پوری کوشش رہتی ہے. جی بہت خوب, بہت عمدہ. ڈاکٹر صاحب, کافی سارے سوالات ہیں ہمارے ذہن میں اور ہمارے ناظرین کرام کے بھی ذہن میں بھی کافی سارے سوالات ہیں, اور ایک سوال آیا ہوا ہے, آپ سے پوچھا گیا ہے کہ از اٹ پاسبل, کیا یہ پاسبل ہے کہ ود 6 ایگز پریگننسی ہو سکتی ہے, اور کاسٹ کس طرح کی رہتی ہے جو جہاں پر سوئی ہمیشہ اٹکتی ہے؟ بالکل. دیکھیے, ایک چیز بہت کلیئر ہے کہ جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ 6 ایگز ایک سائڈ پہ,
किसी भी फीमेल में 6 एग्स नेचुरली डेवलप नहीं हो सकते हैं, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। एक लेडी कुछ मेडिकेशंस के साथ, जिसको हम सुपर ओवुलेशन ड्रग्स कहते हैं, फर्टिलिटी एनहांसिंग ड्रग्स बोलते हैं, उन मेडिसिन के लेने के बाद कई बार एक लेडी एक की जगह 2 या 3 एग्स डेवलप करना शुरू करती है। बिल्कुल। अब जब आप ये बात कर रहे हैं कि 6 एग्स डेवलप हो गए और उससे प्रेगनेंसी हो सकती है, 6 एग्स इज ए ओवर स्टिमुलेशन। ओवरी जो है, अंडेदानी जो है, वो ओवर स्टिमुलेट हो गई और उसके बाद उन एग्स को रिलीज करने के लिए कुछ स्पेशल ड्रग्स, कुछ स्पेशल मेडिसिन, इंजेक्शंस होते हैं कि वो एग्स जो है वो रिलीज हो जाए। बट एक नेचुरल साइकिल में 6 एग्स अगर बन रहे हैं तो पेशेंट्स को नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम है। एक लेडी जिसमें 6 एग्स अगर उस साइकिल में डेवलप हो गए तो बेटर यही होता है कि उन एग्स को बाहर एस्पिरेट कर लिया जाए और उनको आईवीएफ प्रोसीजर पे ले जाया जाए। बट क्योंकि ये डेवलपमेंट ऑल ऑफ द सडन हुई और लेडी को अचानक पता लगा कि उसके एक साइड में 6 एग्स डेवलप हो गए हैं, तो अगर उस साइकिल में उनको प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो उनको सेम सुपर ओवुलेटरी ड्रग्स नहीं लेने चाहिए। उनको डॉक्टर्स को ये समझा देना चाहिए कि सुपर ओवुलेशन ड्रग्स के साथ उनकी जो ओवरीज हैं वो ओवर एग्जॉस्ट हो जाएंगी। जहां पे एक लेडी सिंगल एग डेवलप कर रही है, वो सुपर ओवुलेटरी ड्रग्स लेने के बाद अगर 6 एग्स डेवलप कर रही है तो जो एक एग 6 महीने में बनना था वो एक ही महीने में बने और वो सारे वेस्ट हो गए। सो सुपर ओवुलेशन ड्रग्स का लेने का जो तरीका है वो भी डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की मेडिसिन दें ताकि वो सुपर ओवुलेट ना हो, उनके जो एग्स की क्वालिटी बेटर हो ताकि वो एक नेचुरल साइकिल में प्रेगनेंसी अचीव कर सके। और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि पेशेंट का जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल। हिट एंड ट्रायल से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। सो कुछ मेडिसिन, जैसे पेशेंट किसी डॉक्टर के पास गया, उसने सुपर ओवुलेट कराने के लिए 5 दिन की दवाई दी, 1 महीना खाई, 2 महीना खाई। कश्मीर में ऐसे पेशेंट्स देखे जाते हैं जिन्होंने 15 से 20 महीने अपनी लाइफ में वो ड्रग्स यूज किए हुए हैं और उसके बाद भी आज भी वो इस प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं। सो सबसे पहले अवेयरनेस, एजुकेशन एंड क्या बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है उनके लिए, इसके बारे में पेशेंट को भी जानना जरूरी है, डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना भी जरूरी है कि आपको अगर इन ड्रग्स के साथ फायदा नहीं हुआ, आपको नेक्स्ट प्रोसीजर, बेशक वो आईयूआई हो या आईवीएफ हो या इक्सी हो, इनमें से क्या बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, उसको यूज करके आपको प्रेगनेंसी अचीव करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं और डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन रहता है पेशेंट के लिए रहेगा। वरी साहब, जलंधर से शुरुआत की थी आपने, मर्दान की। बिल्कुल। अभी ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ आपके सेंटर्स हैं, और साथ में ये भी मेरा सवाल रहेगा, गालिबन 2020 से आपने यहाँ पर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इस ताल्लुक से इस एक सेंटर की शुरुआत की, यहाँ आप इस ताल्लुक से कैसा वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं जरा सा ऐड करना चाहूंगा कि कहाँ कहाँ पर मैसर है और ये अवेयरनेस कहाँ कहाँ पर लोगों को मिल सकते हैं जो हमारे नाजरीन किराम वहां पर आना चाहे। देखिए, जलंधर में मैंने 4 आईवीएफ सेंटर जब स्टार्ट किया, इट वाज 2000, ऑलमोस्ट 22 इयर्स हो गए हैं। उसके बाद फिर हमने एक सेंटर अमृतसर में स्टार्ट किया और उसको अभी 6 साल हो गए। 2020 में हम कश्मीर में आए, पोस्ट कोविड जब हुआ, और कश्मीर में ऑलमोस्ट कोई 600 to 700 कपल्स अपना ट्रीटमेंट ले चुके हैं और बहुत सारे ऐसे कपल्स जिनको अब बेबीज हो गए हैं, डिलीवरीज हो गई, कईयों को 2 बच्चे हुए, कईयों को सिंगल बेबी हुआ। तो डेफिनेटली पेशेंट्स को बहुत कॉन्फिडेंस आता है जब वो दूसरे से सुनते हैं कि मुझे भी कामयाबी मिली है और वो अपना ट्रीटमेंट जो है वरदान से लेने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन एक सूटेबल आईवीएफ कंडीशंस नहीं है कश्मीर में। अच्छा। बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लकड़ का ज्यादा यूसेज है इन कंस्ट्रक्शन। स्टरलाइजेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बाद पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बाद वेदर कंडीशंस में इतना फास्ट चेंज है कि आज रात को आप माइनस में है, कल सुबह आप 10 डिग्रीज पे आ गए, परसों सुबह वो टेम्परेचर 20 हो गया, नेक्स्ट डे फिर फॉल आ गया। सो जो ये टेम्परेचर फॉल है इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क
अच्छा सेकंड, जब एक प्रेगनेंसी चल रही है पेशेंट को, जी कई बार हमने देखा है कि पेशेंट प्री मैच्योर डिलीवर कर जाता है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, वेरियस रीजंस. ओके प्री मैच्योरिटी के ऊपर कश्मीर में स्पेशली हमने देखा है कि न्यूनेटोलॉजी केयर यूनिट्स नहीं है. प्री मैच्योर बेबी डिलीवर हुए जी और उनका नुकसान हो गया, बेबीज नहीं रहे या अर्ली डेथ हो गई बेबीज की. बिल्कुल बिल्कुल. सो न्यूनेटोलॉजी केयर जो है जी वो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम लोगों को हमेशा अवेयर रहना चाहिए बिल्कुल. कि अगर कोई कपल, कोई लेडी प्री मैच्योर डिलीवर होती है तो उसको बेस्ट ऑप्शन क्या अवेलेबल है. जी जी बेशक वो मेडिकल कॉलेज है या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उसमें क्या उनकी फैसिलिटीज जो है वो ऐसी हैं कि नहीं है. जी मैं अपने पेशेंट्स को पहले ही अवेयर कर देता हूं कि अगर आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है तो आपको अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंफर्टेबल नहीं है, पंजाब में डेफिनेटली वी हैव ए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर. यहाँ से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर. यस, न्यूनेटोलॉजी केयर के मामले में अगर मैं बात करूं जी तो जो न्यूनेटोलॉजी केयर है उसमें थोड़ा सा बेटर है, अवेयरनेस बेटर है, जी जी वी हैव बेटर इंस्टीट्यूशंस, बेटर पीपल वर्किंग. जी जी जी. सो कंसंट्रेशन भी उनकी इसी रहती है कि प्री मैच्योर डिलीवर हुआ तो कम से कम वो बेबी को बचाया जा सके. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, अभी लास्ट मंथ एक लेडी 27 वीक्स की प्रेग्नेंट, ठीक. बेबी वेट 650 ग्राम्स ओके. और उस बच्चे को बचा लिया गया. माशाल्लाह. यहाँ पे हमने देखा है कि बेबीज नॉर्मल वेट के हैं, सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, फैसिलिटीज कम है, अवेयरनेस कम है. तो डेफिनेटली बेबी जरूर प्रीमेच्योर पैदा हुए बट वो बेबी इस दुनिया में नहीं है बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम. लैक ऑफ सो फैसिलिटीज होना बहुत जरूरी है, पेशेंट को अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है, पेशेंट को ये समझना जरूरी है बच्चा पैदा करने के बाद जब वो डिलीवर होता है उसके बाद कम से कम उसका जो आने वाला टाइम है वो नॉर्मल रहे, वो हेल्दी रहे, ताकि उसका जो ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो उसको बाद में बड़े होने के बाद उसको फेस ना करनी पड़े, पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी. बिल्कुल. जी 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 जी. कुछ आखिरी लम्हात हमारे पास बचे हैं. डॉक्टर साहब आपसे आपके पास वापस आएंगे, मगर डॉक्टर निदा साहिबा तो साहब की आखिरी मैसेज सान नाजरीन तन तुम अल्फाज यू वातन कह जरूरी सह कत यूज जरूरी सान नाजरीन खतर तिकाज कह आखिरी लम्हात तुहद कैमरा हो के बह वन युत योत अमिस जोड़स कि अगर तुम तकलीफ दोशवनी बचन पान वन बासान तकलीफ चाहे जनान मर्दस तुम रूजो बेफिक्र, तुम इो ब्रोट कुन, आप आए, आप बोलें कि क्या मसला है. मेल की प्रॉब्लम डील की जाती है, फीमेल की भी फैक्टर्स को डील किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है शुरू से लेकर कहाँ पे तकलीफ है वो बोला जाता है. वक्तन फवक्तन इस लेडी के अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, स्कैन्स के जरिए हमारे को पता चलता है कि यूट्रस का क्या अभी स्टेटस है, कैसा है. ये एशवारिया पेशेंट तिस्तीवान जो वनान कि तुम वन टीवी रील पे क्या वनान बजदन क्या वनान टीवी रील पे. देखिए टीवी रील पे वन तूता ना आसान आसान ना मुश्किल आसान. कई कबार क्या होता है कि आपके स्कैन्स हमेशा आपको बोलते हैं कि आप क्लिनिकली कोरिलेट करें. दैट मीन्स क्लिनिकली कुछ थोड़ी सी पिक्चर उससे अनलाइक भी हो सकती है. हम स्कैन पे ही पूरा नहीं जाएंगे. गर बाजे पेशेंट वनान के रील ठीक हम सोरी के तेल क्या औलाद. दैट मीन्स क्लिनिकली समवेयर समथिंग इज अनमैचिंग. तो हम सबको इस ताल्लुक से बाखबर होने की बहुत जरूरत है. वरीश साहब से और बिलखुसूस वरदान से क्या मैसेज जाएगी हमारे नाज़रीन के लिए? देखिए, कोई भी कपल जिसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और डिफरेंट जगह से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर वो कामयाब नहीं हो पाए हैं जी, एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को, एक इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट को, एक IVF सेंटर को जरूर उनको मिल लेना चाहिए ताकि उन्हें ये समझ में आ जाए कि किस प्रॉब्लम के कारण उनको आज तक इलाज करने के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिल पाई. और अगर इस तरीके की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, उनको प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही, उनके घर में औलाद नहीं आ पा रही, तो एक IVF कंसल्टेंट से उनकी सलाह जो है वो लेनी जरूरी है ताकि उनको जल्द से जल्द उनका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करके उनको कामयाबी दिलवाई जा सके. उनको बताया जा सके कि कॉस्ट क्या होगी, कितना टाइम लगेगा, किस तरह की दवाइयां लेनी पड़ेंगी और उसके बाद
कोशिश कि जल्द से जल्द वो खुशियां अपने घर में ला सकें। इंशाल्लाह पूरी काउंसलिंग होगी इनकी। बहुत बहुत शुक्रिया वरी साहब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया निदा साहब आपका भी। नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहे। आपको हमारे नए सोफे कैसे लगे ये जरूर बताइएगा हमें लिख के कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, आज हमें दे रुखसत इस वादे के साथ कि कल इंशाल्लाह फिर से लेके आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।